Good evening, friends. Welcome to Just Law Academia. Again, that is powered by Avimanyu IAS. So, friends, this is in continuation with our series that is already going on, right? Under which we are discussing the previous year's question papers, right? Which appeared in Haryana judiciary, right? So, we have already discussed, a good number of question papers, especially starting with constitutional law, followed by Indian Contract Act, then Sales of Goods Act, and then our scholarly faculty, Mr. Raj Samyal, has discussed, I believe a couple of days back, the previous questions on CRPC, Criminal Procedure Code. So this series will continue, and hopefully this will be of great benefit, especially to the aspirants who are preparing for Haryana judiciary. Okay? Although I have stated it several times, and I'm emphasizing again that while discussing all these questions, right, a range of concepts, right, and special terms which are used in law, right, will be elaborated, right, and they will add a new dimension to your understanding of law. Therefore, right, these question papers discussion is not only useful for the aspirants who are preparing for Haryana judiciary, but they are also of great significance, great use for those who are studying academic law, or for that matter who are into legal practice, right? So without wasting our time, right, let's move on. But I'm again telling you that today among the section among the question papers of the previous years, today we have selected Indian Partnership Act 1932. Just like Sales of Goods Act, Indian Partnership Act also carried less number of questions so far as 2018 question paper was concerned, Haryana judiciary. Therefore, right, we have segregated the questions that appeared in 2018, 2017, and 2015 Haryana judiciary exam, and collated them together, right, under a single a PPT, which we shall be discussing now, right? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि in order to make a repository of all these particular explanations and questions, right? So you can download a PDF which is available to you as a link, under this judicial services exam portal, okay? Particularly Just Law Academia, right? So you can definitely note it down, or while we are discussing these questions, you can also take your pen and copy, right, and write down certain concepts that will emanate while we discuss these questions, right? तो बात करते हैं जी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, ठीक है? Even these questions these questions and their explanation will be also significant for those aspirants who are preparing for say Punjab Judicial Service, or for that matter any other state's judicial service, because after all, right, legal subjects are same, right, except certain variations in local laws, right, that vary from state to state, but otherwise these are the main subjects of law which will be of, right, same pattern and same significance, right? Having said that, let's move on to question number 1. तो पहला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So friends, before we discuss and answer all these questions with the explanations, right, let me tell you briefly about partnership, ठीक है, या partnership act, right? What is partnership, या partnership act क्या कहता है, ठीक है? So the question arises कि पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, right? You already know that at the outset, it just like Sales of Goods Act, Partnership Act also used to be a part of Indian Contract Act, but later on, right, both the acts were separated. Sales of Goods Act was also separated from Indian Contract Act, and Indian Partnership Act was also separated, right, from the Indian Contract Act, right? And this Partnership Act came into force
somewhere in 1st October 1932, except section 69, right, which came into force, right, year later, that's in 1933, 1st October, okay. But we are not, dwelling into those nitty gritties right now. हम तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ठीक है, और उन कंसेप्ट्स को हाईलाइट करेंगे जो इन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे. बट इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, लेट मी बी बाइलिंगुअल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिसनर्स, दैट्स वाई, राइट, in order to see the constraints of YouTube medium, right, we have to be inevitably bilingual, right. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप को डिफाइन किया जाता है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, ठीक है, इट्स ए रिलेशन, राइट, बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है. रिलेशनशिप मैं आपको ऐसे बता दूं, रिलेशन बिटवीन पर्संस, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सो दैट, राइट, इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना, बिकॉज इसी डेफिनेशन से बहुत से क्वेश्चन यहां सॉल्व होंगे, ठीक है. तो पहले आपने एक साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं. तो इट्स ए रिलेशन बिटवीन पर्संस, राइट, हु हैव एग्रीड ठीक है टू शेयर प्रॉफिट्स. टू शेयर प्रॉफिट, ये बड़ा जरूरी चीज है जी इन अ बिजनेस, ठीक है, एंड दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये डेफिनेशन है जी पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की. तो पार्टनरशिप किसको कहते हैं, इसके यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप, ठीक है. तो पार्टनरशिप, राइट, एक्चुअली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, ठीक है, राइट, हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन अ बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, राइट, एक्टिंग फॉर ऑल. ये डेफिनेशन है. यहां से हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, पार्टनरशिप कम्स इनटू बीइंग एज ए रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड देयरफॉर all those provisions of Indian contract apply to the formation of a partnership, right, which are applicable to the formation or conclusion of a valid contract, ठीक है, वही प्रोविजन. तो पहला तो ये हो गया, इट्स पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट, राइट. दूसरा एलिमेंट हम यहां से निकाल सकते हैं कि वो क्या है. दूसरा एलिमेंट कि पार्टनरशिप ऑलवेज कम्स इनटू बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस अग्रीमेंट में या जिस रिलेशनशिप में, राइट, कोई भी रिलेशनशिप किसी भी पर्पस के लिए अगर कॉम्पिटेंट लोगों के बीच में होता है, सपोज किसी पर्पस के लिए, राइट, अगर उसमें प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है. इट्स अ डिफरेंट मैटर दैट वेदर प्रॉफिट एंटेल, ठीक है, द शेयरिंग ऑफ लॉसेस एज वेल, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर, राइट. बट राइट, कोई भी वेंचर जो फिलैंथ्रोपिक, जैसा कहता है कि फिलैंथ्रोपिक पर्पस या एल्ट्रुइस्टिक पर्पस के लिए अगर कोई वेंचर आप दो आदमी मिनिमम स्टार्ट करते हैं, राइट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट, तो अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग के पर्पस के लिए नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती. तो पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है, राइट. एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट ingredient of a partnership is also the business. that venture जो आपने स्टार्ट किया है, राइट, आपने या दो लोगों ने, मिनिमम दो लोग तो चाहिए, राइट, वो बिजनेस की फॉर्म में होना चाहिए rather than ए वन टाइम ट्रांजैक्शन, ठीक है. एक टाइम ट्रांजैक्शन है और बिजनेस एंटेल एज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स दैट बिजनेस means an activity which is continuous, on a regular basis जो activity चल रही है, ठीक है, राइट, उसको बिजनेस कहा जाता है. इट्स नॉट वन ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट, कि बल्क में आपने गुड्स खरीद ली और उनको बेच के अपने प्रॉफिट आपस में शेयर कर लिया. दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप, इट हैज़ टू बी इन बिजनेस. इसी से बहुत से क्वेश्चन आगे, राइट, हम सॉल्व करेंगे और आपको, राइट, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पार्टनरशिप कैसे वजूद में आती है या कैसे एग्जिस्टेंस में आती है. तो पहले तो आपने जाना है कि, राइट, पहला इंग्रेडिएंट आ गया
राइट, कि पार्टनरशिप is the consequence of an agreement or a contract in which minimum 2 persons are required. Always remember minimum, because contract एक आदमी से नहीं हो सकता, contract में 2 आदमी तो चाहिए, ये 2 पार्टी चाहिए, इसलिए 2 पार्टी मिनिमम चाहिए पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, राइट। दूसरा, राइट, ये फर्म जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश होनी चाहिए रादर देन फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पस, राइट। एंड थर्डली, इस बिजनेस से प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए रादर देन कौन सा मैंने आपको बताया, रादर देन फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पस, जिसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है किसी भी वेंचर का, राइट, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो ये इंग्रेडिएंट को ध्यान में रखते हुए लेट्स अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन है जी नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन द सूट ऑफ ए पार्टनर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप ऑफ ए फर्म और पार्टनरशिप, ऑल्दो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, ठीक है, दोनों के बीच में राइट डिफरेंस है कि इट मे नॉट नेसेसरली मीन कि देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप राइट may necessarily amount to dissolution of a firm। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सपोज मर जाता है तो पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन तो होगी, बट फर्म में कंटिन्यू, अगर दूसरे पार्टनर चाहते हैं कि हम उसी नाम से उस फर्म को कंटिन्यू करेंगे या करना चाहते हैं तो वो उसी नाम से फर्म कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो राइट, तो कहने का मतलब ये डिसोल्यूशन ऑन द पार्टनर एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का क्वेश्चन है, राइट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रीफली, ठीक है, हम ब्रीफली यहां डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हाट आर द ग्राउंड्स, ठीक है, राइट, ऑन विच ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व, वो ग्राउंड्स क्या हैं, ठीक है, राइट। तो अमंग द सेवरल ग्राउंड्स, राइट, अमंग द सेवरल ग्राउंड्स व्हिच आर लेड डाउन अंडर पार्टनरशिप एक्ट, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड, राइट, इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, on the intervention of a court, although partnership can be dissolved by agreement, ठीक है, तरीके अलग अलग हैं, by agreement, right, partnership can be dissolved by compulsion, this is compulsion, partnership can be dissolved by the happening of certain contingent events, right, and partnership can be dissolved, right, by the intervention of the court। ठीक है, एग्रीमेंट से पार्टनरशिप अगर सपोज एक पार्टनरशिप कोई जिसे कहते हैं कि चल रही है, राइट, और उसमें राइट पार्टनर्स आपस में अग्री करते हैं कि लेट्स डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप फर्म नाउ, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन, राइट, द पार्टनरशिप कैन बी राइट डिसॉल्व। इसका मतलब एक तरीका है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का बाय एग्रीमेंट, राइट। समटाइम ए पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व बाय नोटिस, ठीक है, जिसमें कोई भी पार्टनर अगर नोटिस देता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट पार्टनरशिप हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप भी दो किस्म की होती हैं रिगार्डिंग द ड्यूरेशन, ये आगे क्वेश्चन भी आएगा। एक पार्टनरशिप राइट एट विल होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। जो विल पे पार्टनरशिप होती है उसमें से राइट उस पार्टनरशिप को कोई भी पार्टनर राइट नोटिस देके सभी पार्टनर्स को राइट पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है, राइट। एक होता है राइट कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म which happens on the happening of certain events, right? Suppose जो बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म कर रही थी वो बिजनेस इलीगल हो गया लेटर ऑन बाय वर्च्यू ऑफ ए लॉ, राइट, तो वो पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। या कोई एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, अब वो एडवेंचरस एक्टिविटी अब अनलॉफुल या इलीगल डिक्लेयर कर दी, राइट, लॉ के थ्रू, तो पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। एंड द यो क्वेश्चन जो पूछा है कि कोर्ट किस ग्राउंड पे पार्टनरशिप फर्म राइट डिसॉल्व करेगी, तो इसके लिए आपने जाना है कि कोर्ट जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के ऊपर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, सपोज एक पार्टनर इनसेन हो गया, राइट, और कुछ पार्टनर चाहते हैं कि जो जो द पार्टनर हु हैज टर्न्ड इनसेन, राइट, let the profits of the partnership business be distributed to him also, or to be given to him also, but other partners want that this partnership firm must be dissolved, ठीक है। सो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि किसकी बात मानी जाए,
ठीक है, क्या फर्म को कंटिन्यू रखा जाए और जो इनसेन पार्टनर है उसको उसका प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है, या दूसरे पार्टनर की बात मानी जाए जो पार्टनरशिप फर्म को राइट डिसॉल्व करवाना चाहते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ इंसैनिटी ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इस कन्फ्लिक्ट को देखते हुए ओनली रिकोर्स विद द partners right available is to approach a court of law through a suit right and request the court to dissolve the firm। वही क्वेश्चन पूछा है कि according to section 44 of the Indian Partnership Act the court may dissolve a firm on the suit of a partner on any of the following grounds। तो पहले मैंने आपको insanity yes, permanent incapacity right, permanent incapacity means when partner, बहुत से grounds हैं कोर्ट जब कोई भी सूट एंटरटेन करेगी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए, तो उसमें ये सारे ग्राउंड्स हैं। ठीक है, इंसैनिटी ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, इफ ए पार्टनर टर्न इनसेन, ठीक है, मीनिंग दैट पार्टनर इज नो लॉन्गर इन ए पोजीशन टू बी ए पार्टिसिपेंट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट, या परमानेंट उसकी इनकैपेसिटी होगी, राइट, समय ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू बी इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट, या कोई एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ, राइट, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने याद रखना है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, राइट, देयर आर सेवरल ग्राउंड्स, ठीक है, ऑन विच द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैपन बाय एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया, बाय नोटिस, बाय कंपल्शन, जिसको बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एंड देयर इज वन another ground for the dissolution of a partnership firm that is called as under sections 44 of the Partnership Act, that is right by the court, right। तो कोर्ट किन ग्राउंड पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, समटाइम इसके अलावा भी ग्राउंड्स हैं। अगर ग्राउंड को अगर कोर्ट को लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी कि द पार्टनर्स आर नॉट टॉकिंग टर्म्स, अब लड़ते हैं आपस में, कोई टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। तो कोर्ट, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि कोर्ट कोई भी आपने सूट फाइल कर दी और कोर्ट बाउंड है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोर्ट इज एब्सोल्युटली राइट फ्री, ठीक है, ईदर टू एक्सेप्ट द सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और नॉट। ठीक है, इट इज प्योरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। बट अगर कोर्ट को लगता है कि नाउ राइट द business of the partnership firm is not carried on sound principles, right, there is lack of trust among the partners आपस में talking terms में नहीं है, तो partnership को court dissolve कर सकती है। Among the several grounds mentioned under section 44 of the Indian Partnership Act, right, some of the grounds on the basis of which partnership firm can be dissolved are listed here। So here answer is all the four, that is D, right। अगर लिखा भी है under all the above circumstances section 44 of the Partnership Act states that the court may dissolve a partnership firm, right, noted that the dissolution of a firm by the court is necessitated। मैंने आपको पहले बताया था necessitated means कब जरूर पड़ेगी, right, जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनर हैज टर्न इनसेन, कुछ पार्टनर चाहते हैं कि इंसैनिटी के ग्राउंड पे पार्टनरशिप को डिसॉल्व ना किया जाए, रादर जो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो इनसेन पार्टनरों को भी दिया जाए, पर दूसरे पार्टनर चाहते हैं कि नो, राइट, पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी डिसॉल्व और शुड बी डिसॉल्व, राइट। इन दैट केस, राइट, द ओनली रिकोर्स विद द partners, right, in order to resolve this controversy is to approach a court of law by filing a suit for the dissolution of partnership। इसलिए बोला, right, हमने लिखा dissolve a partnership। Note that dissolution of a partnership formed by the court is necessitated when there is a difference of opinion between the partners regarding the matter of dissolution। मैंने आपको पहले बताया ना, insanity की example बताई। For example, if one of the partners has become insane, some of the partners are willing to continue the firm, but others do not। In that case, right, but again आपने जाते नेक्स्ट टाइम आपको इसी का एक ऑफशूट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोर्ट बाउंड है, राइट, अगर कोई भी पार्टनर अप्रोच करता है कोर्ट में उसको डिसॉल्व करने के लिए, राइट, अंडर सेक्शन 44, तो आपने आपका कोर्ट इज नॉट बाउंड, ठीक है, राइट, कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन, राइट, एंड इवन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, ठीक है, राइट, अगर उसको लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, राइट, जबकि पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं, राइट, आपस में टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, राइट, इन दैट केस, राइट,
द ओनली रिकोर्स मस्ट बी टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, और इसलिए राइट कोर्ट डिसॉल्व कर लेगी, राइट और अमंग दीज कंडीशंस ये सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, राइट. I hope you understood the conceptual underpinning of this question. Let's move on to next question. Question 2. The liability by holding out in case of retiring partner continues up to the liability by holding out. So friends, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको होल्डिंग आउट का मीनिंग पता होना चाहिए. What does holding out mean in the context of Partnership Act or for that matter, ठीक है, in the context of this question. होल्डिंग आउट होता है जी, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा लॉ ऑफ इस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल. इस्टॉपल मीन्स वंस यू से समथिंग, ठीक है, एंड लेट सम पर्सन टू बिलीव इन दैट स्टेटमेंट जो आपने दी, ठीक है, और किसी पर्सन ने आपकी उस स्टेटमेंट पे रिलाई करके कोई एक्ट किया या ओमिशन किया, राइट. लेटर ऑन you cannot retract, later on you cannot take back your words or you cannot back out, from your words or statement, right, which has led a third party or person, right, to do some act or omission for that matter. ठीक है, इसका मतलब होता है, इसको क्या कह सकते हैं, होल्डिंग आउट मीन्स इस्टॉपल. राइट, द लाइबिलिटी बाय होल्डिंग आउट, यार ये क्वेश्चन कहां से है, पार्टनरशिप एक्ट का, राइट, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, राइट. तो आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि लाइबिलिटी बाय होल्डिंग आउट इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज अप टू, राइट. इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी पार्टनर हैं, राइट, किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेशन दी या अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, एंड देयरफॉर आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड इवन बाइंड माय पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, थ्रू माय डिसीजंस, राइट, समय, और उस पे रिलाई करके थर्ड पार्टी ने कोई भी काम कर लिया, किसके लिए, कोई भी सपोज क्रेडिट दे दिया, ठीक है, उस फर्म को, लेटर ऑन, राइट, ही shall be stopped from retracting. Later on that partner shall be stopped, right. अब इसका क्वेश्चन ये है कि ये रिटायरिंग पार्टनर अगर होल्डिंग आउट, मतलब होल्डिंग आउट मीन्स उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, राइट, एज ए पार्टनर, जो कि वो नहीं था, राइट, समय नहीं था उस वक्त क्योंकि वो रिटायर हो चुका था. अब ये कह सकते हैं रिटायर आपको पता है ना, रिटायरमेंट के बेसिस पे भी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाता है रिटायरमेंट के बेसिस पे, राइट. तो अगर किसी पार्टनर ने, राइट, होल्डिंग आउट की, होल्डिंग आउट मीन्स कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन की जिस पे बिलीव करके थर्ड पार्टी ने कोई काम किया, ठीक है, उस पार्टनरशिप के लिए, राइट, समय. अब उसकी लाइबिलिटी क्या है होल्डिंग आउट में, द लाइबिलिटी ऑफ होल्डिंग आउट, द लाइबिलिटी बाय होल्डिंग आउट इन केस ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज. तो होल्डिंग आउट पहले समझ लेना आपने, होल्डिंग आउट मीन स्टॉपल, उसने मिस रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया जो कि वो एक्चुअल में नहीं था, वो रिटायर हो चुका था, बट उसने रिप्रेजेंट किया कि मैं अभी भी पार्टनर हूं, और थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर बिलीव करके कोई काम कर लिया उस पार्टनरशिप फर्म के लिए, राइट. अब ये उसकी लाइबिलिटी, ठीक है, होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये है, राइट. तो इसका सीधा आंसर ये है कि अगर कोई भी रिटायरिंग पार्टनर है, राइट, रिटायरिंग पार्टनर अगर होल्डिंग आउट कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटायर हो चुका है बट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, राइट, तो उसकी लाइबिलिटी, जब पूरी फर्म की लाइबिलिटी, ही कैन बाइंड ऑल द पार्टनर्स, राइट, जब तक, ठीक है, उसका कंडीशन ये है जब तक वो पब्लिकली, जब दूसरे पार्टनर पब्लिकली थ्रू नोटिस ये अनाउंस नहीं करते कि दिस पार्टनर हैज़ नाउ रिटायर्ड, राइट, एंड हिज कंडक्ट विल नो लॉन्गर बाइंड द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बाय हिज अग्रीमेंट और बाय हिज अटरेंसेस व्हाटएवर, ठीक है, राइट. तो क्वेश्चन यही है कि लाइबिलिटी बाय होल्डिंग आउट इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज, कब तक, ठीक है, राइट. तो एक ही कंडीशन है, अगर उसने पब्लिक होल्डिंग आउट, उसने कोई भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिटायर हो चुका था, मगर जब तक ये अनाउंस नहीं किया थ्रू पब्लिक नोटिस, राइट, तब तक पूरी पार्टनरशिप की या उसकी लाइबिलिटी रहेगी. इसलिए पूरी पार्टनरशिप को बचाने के लिए क्या रिकोर्स लिया जाता है, जो भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसका पब्लिक नोटिस दिया जाता है, सो दैट, ठीक है, सो दैट कोई भी रिटायर्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर
राइट, पार्टनरशिप को बाइंड ना कर सके, ठीक है, राइट, बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस और फॉल्स एग्रीमेंट, राइट, एंड wriggle out of the by taking the excuse that I have already retired, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसकी लायबिलिटी तब तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, अगर उसने अपने आप को होल्ड आउट किया है जब तक वो पब्लिक नोटिस के थ्रू ये इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, या दूसरे पार्टनर ये इन्फॉर्म नहीं करते पब्लिक नोटिस के थ्रू कि ये पार्टनर रिटायर हो चुका है, इसलिए कोई भी आदमी इसके साथ कोई डीलिंग करेगा, इस रिटायरिंग या रिटायर्ड पार्टनर के साथ, तो अपने रिस्क पे करेगा। ये कहने का मतलब है अगर कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पब्लिक नोटिस नहीं पब्लिश किया, राइट, देन एंटायर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग दैट पार्टनर, राइट, शैल बी लायबल फॉर ऑल हिज एक्ट्स एंड ओमिशंस। इतनी चीज हो रहा है। तो यही क्वेश्चन है, द लायबिलिटी फॉर होल्डिंग आउट इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, नो, डेट ऑफ पब्लिक नोटिस अबाउट सच रिटायरमेंट, यस, ठीक है। जब तक डेट, जिस डेट से नोटिस पब्लिश हो गया, तो फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है जो मर्जी रिप्रेजेंटेशन करे उस फर्म के बिहाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म विल नॉट बी लायबल। मगर जब तक नोटिस नहीं दिया है, फर्म विल बी लायबल बिकॉज थर्ड पार्टी बिलीव कर रही है कि ये पार्टनर अभी भी इस पार्टनरशिप का पार्टनर है, ठीक है, वो बिलीव कर रहे हैं, राइट, बेशक उसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया या रिप्रेजेंट किया, राइट, और उसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर थर्ड पार्टी बिलीव करके, राइट, कोई पार्टनरशिप फर्म को कोई क्रेडिट दे जाती है, लोन दे देती है, राइट, तो पार्टनरशिप लायबल होगी, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अंटिल, राइट, द रिटायरमेंट नोटिस इज गिवन, ठीक है। इसलिए डेट ऑफ पब्लिक नोटिस अबाउट सच रिटायरमेंट, डेट ऑफ नोटिस टू अदर पार्टनर्स, नो, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, नो, ठीक है। तो आंसर इज बी, इधर लिखा हुआ है, रेफर टू सेक्शन 32 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, ए पार्टनर ceases to be पार्टनर, मैंने बताया बाय रिटायरमेंट, ठीक है। थर्ड पार्टीज कैन स्टिल परस्यू म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द रिटायर्ड पार्टनर एंड कंटिन्यू पार्टनर्स अंटिल अ पब्लिक नोटिस, राइट, ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन। इन द एब्सेंस ऑफ अ पब्लिक नोटिस, मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट, द रिटायर्ड पार्टनर एंड द कंटिन्यू पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ईच अदर टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। मैंने लोन की आपको एग्जांपल दी, ठीक है, राइट। समय उसको कहते हैं होल्डिंग आउट, मतलब वो जब तक नोटिस नहीं देते तब तक, राइट, लॉ ऑफ इस्टॉपल विल अप्लाई अगेंस्ट द रिटायरिंग पार्टनर, राइट, कि उसने अगर रिप्रेजेंट किया और ही उसको, राइट, उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, राइट, जो भी उसने लायबिलिटी इनकर की, किसके लिए, फर्म के लिए, फर्म को वो लायबिलिटी, राइट, इनकर करनी पड़ेगी, राइट, इसलिए प्रेफर्ड मैकेनिज्म क्या है, जो प्रेफर्ड रेमेडी क्या है कि द मोमेंट ए पार्टनर विशेस टू रिटायर, ठीक है, right, either he himself gives a public notice or other partners of the firm give a public notice regarding the announcement of the retirement of a particular partner. इसलिए देखिए public notice, the retired partner, the continuing partners continue to be liable for the act of each other towards the third parties. Such public notice may be given either by the retired partner, मैंने बोला, or by any partner of the reconstituted firm. फॉर्म तो पहले मैंने आपको जो रिटायर हो गए फॉर्म तो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, right, is that clear? ठीक है, that is called as, but there is a distinction between, I have already said, dissolution of a firm and dissolution of a partnership, right. पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी बट फर्म उसी नाम से कंटिन्यू हो सकती है, therefore, right, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट फर्म डिसॉल्व, फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेम फर्म नेम, ठीक है, ये भी आपने चीज याद रखनी है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डिसोल्यूशन। आगे अगेन क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, देखो कितने डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने अभी पहले भी कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन, लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो right, dissolution of a partnership does not necessarily entail dissolution of a firm, मैंने आपको पहले बताया था, if a partner cease to be a partner of a firm, ठीक है, समझे, right, it does not mean that the partnership is dissolved, right, partnership can be reconstituted by the remaining partners under the same name, right, although partnership is dissolved, ठीक है। तो क्वेश्चन है अगेन,
राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप अंडर द, कौन सा तरीका डिसोल्यूशन का नहीं है, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया, देखो पहले क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस, ये 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, राइट, क्योंकि पार्टनरशिप कम्स इनटू बीइंग, इसका लॉजिक ये है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, तो उसी एग्रीमेंट से वो डिसॉल्व भी हो सकती है, ठीक है, राइट, इज दैट क्लियर। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये मैंने आपको बताया, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हैपेंस व्हेन, राइट, व्हेन you know the business for which a partnership firm had been constituted, right, and that business activity has been declared unlawful, yeah, illegal by a law, by the government of the day, or for that matter, by any statutory regulation, right। तो वो उस केस में, राइट, या कोई एडवेंचरस पर्पस के लिए कोई पार्टनरशिप फर्म आपने बनाई थी, कोई एडवेंचर करने के लिए, उस एडवेंचर को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही वो एडवेंचर अनलॉफुल डिक्लेयर करेगी सरकार, उसी टाइम से वो फर्म जो उस पर्पज के लिए बनाई थी, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर फर्म, ठीक है, राइट, वो फर्म कौन से कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बाय एग्रीमेंट, इसका मैंने कहा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एक तरीका है, यस, क्योंकि एक दिस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कि जब डिसोल्यूशन, जब एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, एग्रीमेंट से बनती है, तो उसके डिसोल्यूशन भी एग्रीमेंट से हो सकता है, राइट। सेकेंडली कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स या कंटिजेंसीज, राइट, दैट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, राइट। डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार, रादर रजिस्ट्रार ऑफ दैट एरिया जहां आपकी फर्म लोकेटेड है, उसके पास फर्म की रजिस्ट्रेशन होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि रजिस्ट्रार फर्म, कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें रजिस्ट्रार के थ्रू फर्म का डिसोल्यूशन होता है, राइट। तो डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार इज नो मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। देयर इज नो सच मोड आप कह सकते हो of dissolution of a firm, otherwise other modes are very much laid down under the Indian Partnership Act, under which the partnership firm can be dissolved by agreement, by compulsory dissolution, dissolution by court, ठीक है, right, and dissolution by the happening of certain contingencies or events। dissolution by court के भी बहुत से तरीके हैं, वो मैंने आपको हमने पहले भी डिस्कस किया कि if the partner turns insane, ठीक है, by the insanity, by the incapacity of the partners, right, but इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन तभी आएगी फर्म की डिसोल्यूशन के लिए इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। कुछ पार्टनर चाहते हैं कि फर्म कंटिन्यू रहे ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंचुअलिटीज, और कुछ पार्टनर चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, तब कोर्ट का रिकोर्स लेना पड़ता है, राइट। तो आंसर इज सी, ठीक है, इसलिए लिखा है देयर इज नो सच डिसोल्यूशन एज डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार्स, प्लीज रेफर टू सेक्शन 40, वो हमने ऑलरेडी इसका 40 to 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इज दैट क्लियर, राइट। नेक्स्ट, राइट, नंबर 4, wherein a contract between the partners no provision। तो आपने पहले ही याद रख लेना कि पार्टनरशिप एक्ट बड़ा स्कोरिंग एरिया है, और पार्टनरशिप एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए थे, उनको ध्यान में रखते हुए आपको बहुत से क्वेश्चंस, राइट, नेक्स्ट टाइम आ भी सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चंस, राइट, सिमिलरली, राइट, इन मेंस आप आंसर करने में केपेबल होंगे अगर आपको पार्टनरशिप के इंग्रेडिएंट्स पता है। तो इंग्रेडिएंट्स को हमेशा ध्यान में रखना, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि पार्टनरशिप के मेन इंग्रेडिएंट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, राइट। सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड्स के भी अपने इंग्रेडिएंट हैं, सिमिलरली पार्टनरशिप के भी अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, समझ। और कभी आपको पूछा कि कभी क्वेश्चन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपने कहा पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर पूछा जाए आपको, सबसे एक तो कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। अगर उनमें से पूछा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कैरी ऑन द बिजनेस कैरी करना ही पर्पस है पार्टनरशिप का। एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ए कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट
वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, वेर इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स नो प्रोविजन is made for the duration of their partnership or for determination of their partnership, the partnership is what? Right? ये है जी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक कौन सा है, कहां से है क्वेश्चन? ठीक है, आप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हो, पार्टनरशिप, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये उस टॉपिक से क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। राइट, देखो जी, इसका सिंपल आंसर, ठीक है, इस टॉपिक से आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप कितने किस्म की होती है, जब पार्टनरशिप कैसे बनती है। राइट, पहले तो सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। राइट, दैट इज कॉल्ड एज कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज। राइट, कंपिटेंस ऑफ द पार्टी मीन्स, राइट, दे मस्ट बी अ साउंड माइंड, दे मस्ट नॉट बी insolvent as declared by a court, ठीक है, right, they must not be, you know, the partners must not be minor, ठीक है, and वो ingredient जो कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होते हैं। देन उसके आगे ingredient है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन के लिए है, राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन फॉर विच ए पार्टनरशिप हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्टनर्स, राइट, द पार्टनरशिप एक्ट क्लासिफाइज द पार्टनरशिप फर्म्स इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप 2 किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल और दूसरे को कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, समझे, पार्टनरशिप। तो आपको सीधा क्वेश्चन यहां से नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, किसका बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल and partnership particular, ठीक है, particular partnership, right? देखो जी, partnership at will is self explanatory, right, where no duration, where in a partnership, right, no duration और partnership agreement में कोई duration fix नहीं है, then that partnership is referred to as partnership at will, कि अपनी मर्जी से उसको कोई भी पार्टनर, राइट, नोटिस देके डिसॉल्व करा सकता है। राइट, समझे, तो पार्टनरशिप एट विल कौन सी होगी, जो पार्टनरशिप जिसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। पार्टनरशिप पर्टिकुलर वो होती है जिसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स्ड है या कोई पार्टनरशिप पर्टिकुलर वेंचर के लिए एस्टेब्लिश होती है। सपोज एक पार्टनरशिप ए और बी एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हैं एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, राइट, तो जैसे ही फिल्म की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, राइट, समझ गए, और फिल्म बन के तैयार हो जाएगी, राइट, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट वेंचर, राइट, वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसी पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। राइट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इसकी ज़्यादा डिटेल तो हम मेन क्लासेस में करेंगे, बट यहाँ क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि कोई प्रोविजन यहाँ मेंशन नहीं है, राइट, कौन से ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट, तो इसका सीधा आंसर आ गया पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पहले लिखा है सच पार्टनरशिप विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, रेफर टू सेक्शन 78 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इन फैक्ट द एसेंस ऑफ सच ए पार्टनरशिप इज दैट द पार्टनर्स डू नॉट फिक्स, ये सच ए पार्टनरशिप कैन सर्वाइव इवन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, क्योंकि इसमें कोई टाइम, राइट, नहीं दिया है। Particular partnership can also be converted into a partnership at will, right? अगर, right, after the expiry of a particular period, जिसके लिए, जिस पीरियड के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, मैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, या कोई भी वेंचर जैसे ही कंप्लीट हो गया, राइट, फिर भी जो पार्टनर्स है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उस पार्टनरशिप को, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, in the partnership act, in fact the essence of such a partnership is that the participants do not fix any term of the partnership and are free to break that partnership at their sweet will, as such it exists for an indefinite period। ठीक है, तो एक और टॉपिक हमारा यहां से कवर हो गया, राइट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऑलवेज नोट दिस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, ए एंड बी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ए एंड बी,
जॉइंटली परचेस्ड अ टी शॉप, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन दिमाग में रखी है अगर आपने, तो इस क्वेश्चन को आप, दिस क्वेश्चन विल बिकम ए केक वॉक, राइट, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ जिफी, इन अ सेकेंड, ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को याद रखा है, राइट। ए एंड बी जॉइंटली परचेस्ड अ टी शॉप, राइट, ईच ऑफ देम contributed half of the expenses incurred for pottery and utensils. Then they leased out the shop and shared the rent equally. They are what? Would you call A and B as partners within the meaning of partnership definition under the Partnership Act? ठीक है, right? ये आंसर बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप के बनने के लिए कुछ बहुत ही एसेंशियल कंडीशंस हैं, और अमंग सेवरल एसेंशियल कंडीशंस एक बड़ी एसेंशियल कंडीशन है कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, बिकॉज हमने पहले ही डिफाइन किया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की जो मैंने आपको पहले सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन की। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप, राइट, जो वेंचर जो पार्टनरशिप के थ्रू आपने स्टार्ट किया है, अगर वो बिजनेस की फॉर्म में नहीं है, राइट, समझे, वो वन ऑफ एक्टिविटी है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन की कोई एक्टिविटी है, वो कभी भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन में नहीं आ सकता, राइट, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, ठीक है। ए एंड बी जॉइंटली परचेज अ टी शॉप, ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड, चलो हम दोनों उनका चलो एग्रीमेंट भी था, ठीक है, उन्होंने दोनों ने एक टी शॉप को परचेज किया और आधे आधे पैसे कंट्रीब्यूट किया, किसके लिए, पॉटरी, जैसे कप्स प्लेट्स खरीदने के लिए, राइट, और उसके बाद उन्होंने लीज आउट कर दिया, मैंने रेंट पे दे दिया और रेंट शेयर कर लिया, रेंट का जितना भी रेंट आ रहा था, सपोज 10,000 रेंट था, 5,000 पे शेयर कर दिया, ठीक है। द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन पूछा है कि इनको क्या आप पार्टनर्स कहोगे, तो आंसर आएगा नो, एब्सोल्युटली नो। व्हाई? बिकॉज they are not carrying on the business, ठीक है, and business is not defined in a narrow term under the Partnership Act, right? It means this must be a continuous regular activity, ठीक है, regular activity, right? ये वही बात होगी कि A and B agreement करते हैं कि चलो जो हम क्रैकर्स खरीदते हैं, ठीक है, राइट, कहाँ से, तमिलनाडु से, साउथ से क्रैकर्स लाते हैं सस्ते, राइट, और चंडीगढ़ में आप उनको बेचेंगे दिवाली पे, राइट, और उसका प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, राइट, समय। नाउ ए एंड बी हैव कंट्रीब्यूटेड इक्वली so far as purchase of those crackers from down south is concerned, right, and ultimately they sold the crackers in Chandigarh on Diwali day and shared the profit, जितना भी उससे profit हुआ, right. Now would you call them as partners? तो answer is absolutely no, because this is one time activity, right. Business must be there so far as partner, the existence of partnership and, right, the what you call the existence of partners is concerned. Therefore better term they would be, right, to call them just like crackers वाली example दी मैंने, तो इनको भी आप better क्या बोलोगे, they are co-owners. This is what makes the difference between partners and co-owners, because partners वही होते हैं जो profit share करते हैं, right, profit तो यहाँ भी share कर रहे हैं, but they must be sharing the profit out of the business, and business must be a continuous activity, not the one which is reflected in the question here. इसलिए they are co-owners in this case because A and B are not carrying on any business as held in the famous case, आपने केस भी याद रखना, गोविंद वर्सेस 1940 मागो, right. Moreover, the so-called business must suggest a continuity or repetition of acts, must suggest a continuity or repetition of acts. Merely a single isolated transaction of a sale and purchase by a number of persons does not mean carrying on the business and hence no partnership. Is that clear? तो याद रख लेना कि, राइट, ऐसी कोई भी आपको एग्जांपल नेक्स्ट टाइम भी आ सकती है, क्रैकर्स की एग्जांपल दे सकते हैं, राइट, या आप ये कह सकते हो कि ए एंड बी एक प्रॉपर्टी जॉइंटली परचेज करते हैं, राइट, और उस प्रॉपर्टी का जो रेंट है उसको इक्वली शेयर करते हैं, तो क्या ए एंड बी, राइट, उस प्रॉपर्टी का रेंट या जो भी चाहे पीजी उन्होंने उसका बना दिया, क्या वो पार्टनर उनको कहा जाएगा, क्या वो पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, तो आंसर अगेन आएगा नो, बिकॉज दे आर नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड बिजनेस इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी।
जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 25 of the Indian Partnership Act 1932, the liability of the partners for the acts of the firm is, एक और याद रखना, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का एक और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब यह है कि एक पार्टनर एट द सेम टाइम ही इज द एजेंट एंड द प्रिंसिपल, ठीक है, ही इज द प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज एट द सेम टाइम प्रिंसिपल फॉर अदर पार्टनर्स एज वेल एज एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स, ठीक है। इट मीन्स देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, और उसी के बेसिस पे आपने जा सकना है कि म्यूचुअल एजेंसी में, राइट, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल। दिस इज व्हाट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, कभी आपको पूछा जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी में क्या फ़र्क होता है, तो यही कहना है कि एक पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है, और सेकेंडली, राइट, सभी पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। ये वही बात होगी जैसे आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा होगा ना कि काउंसिलर मिनिस्टर, ठीक है, एक मिनिस्टर की गलती पूरी काउंसिलर मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स विल सिंक टुगेदर, राइट, सेम अप्लाइज टू the partnership. So always remember that, ठीक है, the liability is always joint and several, ठीक है। Next, move on to next question, question 7, right? Which statement is correct? Right? Which statement is correct? Right? A partnership firm is a juristic person. A partnership firm is distinct legal entity from its partners. A partnership firm is not distinct legal entity from its partners. All of the above. तो ये आपको पहले बता दिया मैंने कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं है। दिस इज व्हाट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पार्टनरशिप एंड ए कंपनी। जब हम डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी शैल बी डिस्कसिंग इन दैट। तो याद रखना, एक पार्टनरशिप जो है एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन नहीं है। इट मीन्स, राइट, इसकी आइडेंटिटी इसके पार्टनर्स के पार्टनर से सेपरेट नहीं है। इसके पार्टनर्स की जो आइडेंटिटी है वही पार्टनरशिप की आइडेंटिटी है, व्हेयरएज कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, वो अलग लीगल पर्सन। Okay, question number 8. Under section 10, every partner has a duty to indemnify the firm for any loss caused to the firm by his dash in the conduct of the business of the firm. तो याद रखना, इसका आंसर है जी फ्रॉड, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है, ठीक है, फ्रॉड, अगर कोई भी पार्टनर बोनाफाइडी मीन्स अच्छी अटेंशन से अगर फर्म के लिए या फर्म के बिजनेस को अफेक्ट करता है, बोनाफाइडी, ऑल्दो फर्म को लॉस होता है, देन दैट पार्टनर इज नॉट बाउंड टू और नॉट ड्यूटी बाउंड टू इंडेमनीफाई द फर्म। बट अगर वो मेलाफाइडी, फ्रॉड के थ्रू, मेलाफाइडी और बोनाफाइडी के बीच में डिफरेंस है, फ्रॉड के थ्रू कोई लॉस कॉज करता है फर्म को, देन राइट दैट पार्टनर इज लायबल टू इंडेमनीफाई, का मतलब होता है कंपनसेट द फर्म। इसलिए लिखा है एवरी पार्टनर शैल इंडेमनी द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म, रेफर सेक्शन 10। Coming to last question जी, a partnership for which no period, I have already repeated, incidentally ये question दोबारा आ गया, ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया था। मैंने आपको पहले बताया था कि on the basis of duration partnership can be of two types, partnership at will and partnership particular, that is particular partnership and partnership at will, right? इसमें सीधा क्वेश्चन है कि जिसमें कोई पीरियड या ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी पार्टनरशिप फर्म को क्या कहा जाएगा? तो आंसर इज partnership at will. I have already explained it, please note it down, ठीक है। And last but not the least, registration of a firm is, तो एक और चीज आपने याद रखना है, this is what makes a distinction, again नोट करके रखना कि एक कंपनी और पार्टनरशिप में यही फ़र्क है। एक फ़र्क मैंने आपको बताया कि कंपनी को क्या, कंपनी एक लीगल पर्सन है, राइट, इट कैन सू एंड कैन बी सूड, whereas पार्टनरशिप एक लीगल ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी पार्टनर्स के अलावा सेपरेट नहीं है, बट कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट है। सिमिलरली, राइट, you know, maximum and minimum number is also required, so far as a partnership firm is concerned, maximum number यहाँ 10 और 20 mentioned है कि अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो पार्टनरशिप जो फर्म है, राइट, बैंकिंग बिजनेस 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते मैक्सिमम, राइट। अगर किसी और बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म है तो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। वेयर एज
पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कोई ऐसी मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? समझे? तो कुछ डिफरेंस यही है। सिमिलरली कंपनी को अंडर कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, whereas अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 registration of a firm is not mandatory, although it is right subject to certain handicaps. अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं, लीगल रेमेडीज फर्म को नहीं मिल सकती, बट मैंडेटरी नहीं है। तो आंसर है यहाँ इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? समझे? नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन फर्म इज मैंडेटरी, सॉरी ये नहीं है, इज नॉट कंपल्सरी या नॉट मैंडेटरी भी कह सकते हो आप, ठीक है? तो याद रखना, दिस इज व्हाट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड ए कंपनी, एंड दिस इज ऑल for today, right? I hope you like the concepts and do give your valuable suggestions, right? And any queries that you may have, right, regarding this topic. Till then, right? Thank you very much. Bye bye.